Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Shalom. शालोम। I greet you all in the matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. मैं परमेश्वर की मधुर और मीठे नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। Once again, I'm very much glad to come in front of you all और एक बार मैं फिर से बहुत ही खुश हूँ आप सबके सामने आकर with this program, इस कार्यक्रम के साथ Learn Hebrew. लर्न हिब्रू। I give all glory and honor और मैं सारी आदर और सारी महिमा to our Almighty God. हमारे महान परमेश्वर को देता It हूँ is just because of His loving kindness और ये केवल उसकी जो प्रिय दया के कारण है and of His faithfulness और उसकी विश्वास योग्यता के कारण that I am able to come in front of you all कि मैं आप सबके सामने आने के योग्य हो सका in हूँ order to teach this biblical language. ताकि आपको इस बाइबल की भाषा को सिखा सकूं। Even I give thanks for all the viewers और मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद करता for हूँ your love आपके जो प्रेम के लिए in watching this program इस कार्यक्रम को देखने के and लिए also of your zeal और आपके उत्साह के लिए in learning the biblical language, which is the Hebrew और language. बाइबल की भाषा को सीखने के लिए जो कि है इब्रानी भाषा। And also I give thanks for the people those who have called me and gives me of their suggestions and feedbacks. और उन सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ जो मुझे कॉल करते हैं अपने फीडबैक को और अपने सुझावों को भेजते हैं। Even following of this Hebrew programs in YouTube और जैसे कि वो YouTube के द्वारा भी इस कार्यक्रम को देखते हैं and also giving us your comments by watching the program in the YouTube channel. और जैसे कि आप YouTube में इस कार्यक्रम को देखते हैं और अपने कमेंट्स को हमें भेजते हैं। Because in the YouTube you can have all the from the beginning on about the Hebrew language. और जो YouTube में आप जो सारे शुरुआती के कार्यक्रमों को देख सकते हैं You can see of all the very first episode till the updated episodes. और आप जो शुरू से लेके अब तक के जो कार्यक्रमों में उसे देख सकते हैं So you can follow them और आप उन्हें देखें and you can learn from them और आप उनसे सीख सकते हैं and enrich yourself in the knowledge of God. और परमेश्वर के वचन में अपने आप को बढ़ा सकते हैं। Well, we have been learning about, और जैसे कि आप जानते हैं कि हम सीख रहे हैं so we are learning about the biblical concept of sin. और हम सीख रहे हैं पाप के लिए बाइबल की अवधारणा को। As in the last episode, और जैसे कि पिछले कार्यक्रम we में have seen that there are 20 different words that are used in the Bible. और हमने देखा कि जो बाइबल में 20 शब्दों का उपयोग किया गया है पाप के लिए And that is in Old Testament और जो पुराने नियम में and in the New Testament. और नए नियम में। So in the Old Testament we see there are 8 different words that are used for the word sin. और जो हम देखते हैं कि पुराने नियम में 8 शब्दों का उपयोग किया गया है पाप के लिए। And then we see about the 12 words which are used in for the word sin in the New Testament. और जो नए नियम में पाप के लिए 12 शब्दों का उपयोग किया गया है। As the Bible is written in three languages, और जैसे कि आप जानते हैं कि बाइबल को 3 जो अलग भाषाओं में लिखा गया है Hebrew, Aramaic and Greek. और वो है इब्रानी, यूनानी और अरामिक। So now we come here about 8 different words that are used for the word sin in the Hebrew language. और यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 उन अलग शब्दों को जो कि इब्रानी भाषा में पाप के लिए उपयोग किए गए As हैं। even I said in the last episode, और जैसे कि मैंने पिछले कार्यक्रम में आपको बताया there था are different words or when we are reading in the Bible. और बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें जो अलग शब्दों को देखते हैं। So today let us learn about this, the words which are used for the word sin in the Old Testament. और आज हम जो पुराने नियम से कुछ वचनों को देखेंगे और उन शब्दों को देखेंगे जो कि पाप के लिए उपयोग किए गए हैं। So the very first word और जो पहला शब्द है that we find in the Bible is sin और जो पाप के लिए हम बाइबल में पाते हैं or sinner. और वो है जो पाप या फिर पापी। So the word sin and sinner. और जो बाइबल में हम देखते हैं कि पाप और पापी। And let us see what actually the word sin means in the Bible. और हम जो बाइबल के आधार पे देखते हैं कि जो पाप का असल में जो अर्थ क्या है। When we read in the Old Testament, और जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं and this is the word of sin which is used 222 times in the Bible.
और बाइबल में हम देखते हैं कि उसे 522 बार उसका उपयोग किया गया है। The word sin और ये जो शब्द है पाप or the word sins, और या फिर जो पाप, and this is the word is used to 522 times in the Old Testament. और पुराने नियम में जो उसका उपयोग 522 बार किया गया है। Now let us see what the word sin in the Hebrew language. और देखेंगे कि इब्रानी भाषा में पाप को क्या कहते हैं। The word that we see, it is the word for sin in the Hebrew language. और जो इब्रानी भाषा में पाप के लिए जो शब्द है, It is the word that we see as kata. और वो शब्द है कटा, Kata. कथा, Kata. कथा। It's like, hate, और ये है हेत, which is ch, जो कि है सी है, pata, पाटा, and then we see it is as tet, और फिर हम देखते हैं टेत, and then kamex, और फिर कामिक्स, and then aleph. और फिर आलिफ। So kata. कथा। Kata is a Hebrew word for sin. और पाप के लिए जो इब्रानी भाषा में शब्द है वो है कथा। So kata, Kata. how it is? और कैसे है ये? Hate, हेत, pata, पाटा, tet, टेत, kamex, कामिक, aleph. आलिफ। So we see it's a hate, which is ch, हेत जो कि है यहाँ पे सी है, pata, which is a, पाटा जो कि है ए, and tet, which is t, टेत जो कि है टी, kamex, which is a, कामिक्स जो कि है ए, and aleph, which is no sound, it is a silent. और आलिफ जिसका कोई आवाज नहीं। So kata, कथा, kata, कथा, which means जिसका अर्थ है, in the meaning of it, और इसका जो अर्थ है, it is missing the mark. और जिसका अर्थ है कि जो अपने निशाने से भटक जाना, So it is a missing the mark. और अपने जो निशाने से भटक जाना, This is missing the mark, और जो अपने निशाने से भटक जाना, or even we say this one as और इस तरह से भी हम इसे कह सकते हैं, we can say this one as missing the mark और इस तरह हम इसे कह सकते हैं कि अपने निशाने से भटक जाना, or unintentional sin, और या फिर अनजाने में किया गया पाप, or it is to say crime or fault. और इसे हम कहते हैं अपराध या फिर दोष। So that's what it is the word kata. It is a Greek word that we see, it is as amatia. और जो यूनानी भाषा में इसके लिए जो शब्द हम देखते हैं वो है अमाटिया, Amatia अमाटिया, or even kata, और या कटा, which is the same meaning, और दोनों का जो समान अर्थ है, it is missing the mark. और अपने जो रास्ते से भटक जाना। So it is a God had set a mark, और परमेश्वर ने एक मार्ग को जो स्थिर किया, or you see about an shooter, और आप उसे देख के उसे जो निशाना लगाना है, the person, the one who shoots, और एक व्यक्ति जो निशाना लगाता है, and it is even though the board is this much big, और यहाँ पे जो देखें कि बोर्ड चाहे बड़ा है, but he has given only target where he should shoot. लेकिन वो उस जो चिन्ह को बताता है जहाँ पे उसे जो निशाना लगाना है। So if you are an example, we see this is the place, और आप देखें कि जो उदाहरण के लिए ये वो जगह है, and from far that you aim or you shoot. और दूर से आपको यहाँ पे जो निशाना लगाना है, So it is like to say you have to, your arrow should come here. और जो आपका तीर है वो इस जगह पे लगना But चाहिए। instead of this, if it is goes here and there, और यदि वो इस प्रकार से इधर उधर चला जाता है, it is not that you have not done a proper thing. और आपने उसे जो सही रीति से नहीं किया। So in the same manner, और इसी प्रकार से like God set a goal for us. और परमेश्वर ने हमारे लिए एक निशाने को रखा, God set a target in front of us. और परमेश्वर ने हमारे सामने एक उद्देश्य को रखा, God set an
an order for us. और हमारे सामने एक जो रीति को So रखा, that's what it is about aiming to the target. और हमारा जो उद्देश्य है वो निशाने पे होना That चाहिए, arrow should come and the target which is set before us. और जो तीर उसी जगह पे लगना चाहिए जो कि निशाना हमारे सामने रखा गया है। So that's what kata, और इसीलिए यहाँ पे जो शब्द है कटा, कटा, which is a missing the mark. और जिसका अर्थ है कि निशाने से चूक जाना। So it is very very important और thing ये बहुत ही जरूरी बात है, that for everything that God set at aim or target. और परमेश्वर ने हर एक चीज का जो एक निशाना रखा है। In the Bible और बाइबल में हम देखते हैं, that we see और हम जो देखते हैं, Moses, मूसा, who was with the people of Israel for 40 years, और मूसा जो इज़राइल के लोगों के साथ 40 साल तक था, and he led the people of Israel और उसने जो उनकी अगुवाई की in the wilderness और जंगल में, towards the promised land. और ताकि वो जो वायदे की भूमि में जा सके, He tolerated with them और उनके साथ उसने बहुत बातों को सहा, and he prayed for them, और उनके लिए जो प्रार्थना किया, and he was with them, और वो उनके साथ था। and we see that just a small mistake that he have done. और उसने केवल एक छोटी सी गलती को किया, The mistake is that God told him to go and speak to the rock, और परमेश्वर ने उसे कहा था कि वो जाए और जो चट्टान से बात करे, and from that rock that they'll get the water to drink. और उसमें से उन्हें पानी मिलेगा पीने के लिए। But because of impatience, और जो अपने जो बेप्रतीति के कारण, and Moses went and hit the rock twice. और जो मूसा गया और उसने चट्टान के ऊपर 2 बार मारा, He hit on the rock for 2 times. और उसने चट्टान के ऊपर 2 बार मारा, The water came और जो पानी आया and the people drank, और लोगों ने उसे पिया, and even the animals or the cattle who were there, that's they all drank. और जो सारे जानवर और जो पशु थे सबने पिया। But लेकिन God was angry upon Moses. लेकिन जो परमेश्वर मूसा के ऊपर नाराज था। Moses, he had beaten on that rock twice, where God told him to speak, but he have beaten. और परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि वो केवल चट्टान से बात करे, लेकिन जो मूसा ने चट्टान के ऊपर 2 बार मारा। And you all know that consequence. और आप सभी जानते हैं कि इसका जो परिणाम क्या हुआ। God told him, और परमेश्वर ने उसे कहा, you are not going to enter into the promised land. कि तू वायदे की भूमि में प्रवेश नहीं करने पाएगा। You can see, और तू उसे देख सकता है, you can see the promised land और तू जो वायदे की भूमि को केवल देख सकता है, from Mount Nebo. और जो पर्वत नेबो से, You can see, और केवल देख सकता है, but you cannot enter, और लेकिन तू उसमें प्रवेश नहीं करेगा, because he missed the mark. क्योंकि उसने अपने निशाने से जो भटक गया। So that's what the Bible says, that you may be thinking it is a small thing or it's maybe a slight thing, but when God sees it's as a big. और जैसे कि आप कई बार सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये छोटी गलती है, छोटा पाप है, लेकिन हमेशा याद रखें कि परमेश्वर के लिए ये बातें बड़ी हैं। You may say it is a small thing. और आप कह सकते हैं कि ये छोटी बात है, It's a small lie. और ये जो छोटा झूठ है, It's a small thing that I have taken. और ये बहुत सी छोटी बात है जो मैंने की है, It is only small thing that I took from there. और बहुत सी छोटी चीज है जो मैंने वहाँ से ली है। But the Bible says लेकिन बाइबल कहती है, it is as kata. और वो जो कथा है, It is amatya, और वो जो पाप है, which is missing the mark. और जो कि अपने निशाने से चूक जाना है। Because this word kata और ये जो शब्द है कथा, is derived, और ये जो इसका जो उत्पन्न हुआ है, it is derived from the Hebrew word, और ये जो इब्रानी भाषा के शब्द से आया है, where we say it is as kowtow. और उसे हम कहते हैं काउटाओ, Kowtow. काउटाओ, Cow, खाओ, which is calf, cow, खाओ, and then tow. और फिर टाओ, Kowtow. खाओटाओ, Calf, खाफ, which is KH, जो कि है KH, and then comics, और फिर कामिक्स, which is A, जो कि है A, and wow, which is W, वाव, जो कि है W, and then we see about
makef, which is hyphen in English, मके जो कि अंग्रेजी भाषा में हाइफन है, and then tau, which is T, और टाव जो कि टी है, and then again kamex, और फिर कामेक्स which is A, और जो कि है ए, and then wow, which is W. और वाव जो कि है डब्ल्यू। So this word kata और ये जो शब्द है कथा, is derived from this kaw tau. और ये जो शब्द काव टाव से आया So है, that's what kata. और इसीलिए हम इसे इस प्रकार कहते हैं खा ठा, So that's what kaw tau. काव ठाव, So which means जिसका अर्थ है, it is to say, और इस तरह से हम कहते हैं, which means it is to say और इस प्रकार से हम इसे कहते हैं to miss or to err. To err from the work or to sin or to stumble. The word kowtow और ये जो शब्द है काव ठाव, is the root word for kata. और इसका जो मुख्य शब्द है वो है काठा, So kowtow means और काव ठाव का अर्थ है to miss, खो देना, to miss the target, और अपने जो निशाने से चूक जाना, to miss the thing which is kept in front of. और उन चीजों से चूक जाना जो आपके सामने रखी है, So it is to the other to err from the work. और जो अपने काम से भटक जाना, It is the work that you are doing, और जो काम आप कर रहे हैं you missed it, और आपने उसे खो दिया, or else to sin or to stumble. और जिसका अर्थ है कि पाप या फिर जो चूक जाना, गलती करना, So it is to stumble. और गलती करना, So it is to say that the Bible says और इस तरह से कहते हैं कि बाइबल कहती है a believer और एक विश्वासी should not become a stumbling block to a weak Christian. एक गलती करने वाला नहीं होना चाहिए, A believer और एक विश्वासी should not become a stumbling block और दूसरे के लिए एक गलती करने वाला खड्डा नहीं होना चाहिए, for a weak Christian, और एक जो कमजोर मसीही or के लिए, to a new believer. और या फिर एक नए विश्वासी के लिए, You should not become a stumbling block. और दूसरे के लिए एक गलती करने वाला खड्डा नहीं होना If चाहिए। you read in the 1 Corinthians chapter 8, और यदि आप पढ़े पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 को, you read the entire chapter, और आप जो पूरे अध्याय को पढ़ें, and there we see that if you become a stumbling block to a weak Christian, और यदि आप एक दूसरे जो कमजोर मसीही के लिए एक गलती का खड्डा बनते हैं, and the Bible says that you are sinning against our Lord Jesus Christ. और बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हो, You are sinning against our Lord Jesus Christ. और आप हमारे परमेश्वर के विरोध में पाप करते हो। Okay, so the first word that we see in the Bible for sin, और जो बाइबल में हम पहला शब्द जो पाप के लिए देखते हैं, it is kata, और इब्रानी भाषा में वो है कठा, kata, कठा, which means missing the mark. और जिसका अर्थ है कि अपने निशाने से चूक जाना। So that's what it is very important thing that are you in the target what God set before you. और इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप देखें कि क्या आप उस उद्देश्य के और हैं जो परमेश्वर ने आपके सामने रखा है। The target, और वो उद्देश्य, the goal, और एक निशाना, the destiny, और एक दिशा, the thing that God had prescribed in the Word of God. और वो बातें जो परमेश्वर ने वचन में कही हैं, Am I क्या in the center of God's will? और क्या मैं परमेश्वर की इच्छा में हूँ, Am I focusing in the center of God's will? और क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। If I am not doing that, और यदि मैं उसे नहीं कर रहा, you may be thinking that I am aiming और शायद आप सोचते होंगे कि मैं उसकी ओर निशाना लगा रहा and हूँ, I am shooting. और मैं उसे जो निशाना Oh, कर रहा it हूँ, is coming near. और ये बहुत ही पास Oh, है, it is coming very near. और ये बहुत ही पास में है, It's very, very near. और ये बहुत ही नजदीक है। But लेकिन God says, परमेश्वर कहता है it is not that around that you need to arrow or you need to focus. और परमेश्वर कहता है कि तुम्हें उस निशाने की ओर देखना है, ना कि उसके चारों ओर। It is not about around.
और ये जो घेरा नहीं, within the target, और उस जो निशाने के ऊपर, in the target. निशाने के ऊपर। So the other word for kata, और जो दूसरा शब्द है कटा के लिए, it is unintentional sin. और वो है जो अनजाने में किया गया पाप, It is unintentionally, और वो है जो अनजाने में किया गया, without knowing you, और बिना आपके जो जाने हुए you are committed that sin. और आपने उस पाप को किया। That's what it is without intention. और वो है जो अनजाने में। And the word again we see about kata, which means a crime. और जो कटा का अर्थ है कि जुर्म, It is a crime that you are doing. और वो जो अपराध जो आप करते You may हैं। say that, no, what crime I have done. और आप सोचते होंगे कि क्या अपराध मैंने किया। Moses could have said that, no, I just bet on the rock. और मोजेस और मूसा इस तरह से कह सकता था कि मैंने केवल जो उस चट्टान के ऊपर मारा था, Because I was impatient. क्योंकि मैं जो इंतजार नहीं कर सकता था, I was frustrated. क्योंकि मैं जो खिंच गया था। Because the people of Israel, they were murmuring and murmuring. क्योंकि जो इज़राइल के लोग थे वो कुड़कुड़ाने लगे थे, And because of that, he lost of his patience. और इसीलिए उसने जो अपने नियंत्रण को खो दिया। But that was crime in the sight of God. लेकिन वो परमेश्वर की निगाह में पाप था, And that was a fault in the sight of God. और वो था जो परमेश्वर की निगाह में किया हुआ So दोष। the word kata और ये जो शब्द है कटा, is derived from a word in the Hebrew language as kowtow, और ये जो इब्रानी भाषा के शब्द काउटाउ से आया है, which means to miss, और जिसका अर्थ है कि जो खो देना, to err from the work. और जो अपने काम से भटक जाना, It is to sin और पाप, or to stumble. और या फिर जो चूक जाना या गलती करना। So that is what, the first word that we see about the word sin. और ये जो पहला शब्द हमने देखा पाप के लिए, I believe now और मैं आशा करता हूँ कि you are able to know what is sin. और आप जो जान पा रहे होंगे कि पाप क्या है, What is sin? और पाप क्या है, Sin is और जो पाप है, missing the mark. और जो अपने निशाने से चूक जाना, It's to missing the mark what God have set before us. और उस निशाने से चूक जाना जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है, And that is sin. और वही पाप है। And we know that और हम जानते हैं, the wages of sin is death. और जो पाप का परिणाम मृत्यु है। The wages of sin is death. That's what the Bible says in Romans 6:23. और रोमियो अध्याय 6 का 23 में है कि जो पाप का परिणाम मृत्यु है। And 1 John chapter 1 और जो पहला यूहन्ना उसका अध्याय 1 in verse 7 till verse 10, और 7 से लेकर 10 तक, the Bible says, और बाइबल कहती है, no one should think that I am not a sinner. और कोई भी इस प्रकार से ना सोचे कि मैं पापी नहीं हूँ। If you think like that, और यदि आप इस प्रकार से सोचते the हैं, Bible says that you are a liar. और जो बाइबल कहती है कि तुम झूठे हो, You are a liar. और तुम झूठे हो, So it means that you make you as a liar and you make God as a liar. और आप इस प्रकार से बनाते हैं कि आप सच्चे हैं और परमेश्वर झूठा है। So you make God as a liar. और आप जो परमेश्वर को झूठा ठहराते The हैं, Bible says और बाइबल कहती है you are a sinner. और आप पापी हैं। Because when you read the Bible, और जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, the Bible shows that you are a sinner and you need a savior. और बाइबल बताती है कि तुम पापी हो और तुम्हें उद्धार की जरूरत है। That's what in 1 John chapter 1 it says. और इसीलिए जो यूहन्ना 1 में लिखा है, Confess और जो अंगीकार करें your sins अपने पापों का, and he is faithful to forgive all our sins. और वो विश्वास योग्य है कि आपके सब पापों को क्षमा करे। Because Jesus is the only the one who could able to cleanse us and forgive all our sins. और परमेश्वर यीशु मसीह केवल एक ही योग्य है जो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारे जो अपराधों को धोता है। So that's what we see. It is the word kata. और ये शब्द हम देखते हैं कथा, Kata, कथा which means sin. जिसका अर्थ है कि पाप। And this word is used to 522 times in the Bible. और ये जो शब्द है ये 522 बार इसका उपयोग किया गया है पुराने नियम में। So particularly it's in the Old Testament. और खास तौर पे पुराने नियम में। So and it is what is sin? और पाप क्या है?
it is missing the mark, और ये है निशाने से चूक जाना, and it is unintentional sin. और या फिर अनजाने में किया गया पाप। It's not wantedly or willfully. और ये जो आपने चाहते हुए नहीं किया, It is not like you want to do it, और इस प्रकार से नहीं कि आप चाहते थे इसलिए आपने किया, but it is where you have done without your knowledge. लेकिन आपने इसे जो अपने अनजाने में ही कर दिया। So that's what I said about Moses is a unique example for that. और इसीलिए मैंने आपको जो मूसा की उदाहरण दी है, He doesn't want to hit, but he lost the patience and he did the mistake. और वो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन जो उसने अपना नियंत्रण खो दिया और उसने जो चट्टान पे मारा, Because the people became a stumble for him. क्योंकि वहाँ पे जो लोग उसके लिए जो एक चूक का कारण बन गए थे, So because they were murmuring, और क्योंकि वो कुड़कुड़ा रहे थे। as you all know that the book of Numbers, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि गिनती की किताब, it is known as a book of murmuring. और उसे कहा जाता है कुड़कुड़ाने की किताब, Because you can see in most of the chapters, the people they murmured and they complained. और आप देख सकते हैं कि उसके ज्यादातर अध्यायों में जो लोग हैं वो कुड़कुड़ाते हैं, So because of that, और इसी के कारण Moses lost of his temperate, और जो मूसा ने अपने नियंत्रण को खो दिया, and he went and hit on the rock twice instead of speaking to the rock. और इसीलिए उसने चट्टान के ऊपर 2 बार मारा, लेकिन उसे वहाँ पे बोलना था। And that's made him as a fault or crime in the sight of God. और इसी ने उसे जो परमेश्वर की निगाह में एक अपराधी और दोषी बना दिया। So my dear viewers, और मेरे प्रिय दर्शकों, please understand what is sin and examine yourself. और समझे कि पाप क्या है और अपने आप का जो निरीक्षण करें। The Hebrew word for sin is kata, और इब्रानी भाषा में जो पाप के लिए शब्द है वो है कठा, which is derived from a root word kowtow, और जो कि आया है काउटाउ शब्द से, because kowtow is to miss. और काउटाउ का अर्थ है कि जो खो देना। It is to miss. That's what we say. It's I miss the train, I miss my bus, or I miss my opportunity. So in the same manner, you miss the things in life. और इस प्रकार से आप कहते हैं कि मेरी गाड़ी छूट गई, मेरी बस छूट गई, मतलब आपने कुछ खो दिया है। So it is the same way that you miss the target what God set before you. और आपने उस जो निशाने से चूक गए जो परमेश्वर ने आपके सामने रखा है। So I believe that today's program is a blessing to you all. और मैं आशा करता हूँ कि आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीष का कारण होगा। Continuously watch this program और लगातार इस कार्यक्रम को देखते रहें and pray for us. और हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। Give us your suggestions and feedbacks. और अपने सुझावों को, अपने फीडबैक को हमें भेजें। May the Lord bless you and be with you all. और परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप सबके साथ हो। Shalom. शालोम। Tau Tora. तोड़ा।